सबको नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। भारत के करोड़ों लोग हमने आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे स्कूल में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाने के अवसर पर उसमें भाग लेने वाले सबको स्वागत करना मेरा दायित्व है। इस समारोह का उद्घाटन आदरणीय अध्यापक जी श्री चंद्रबोस मास्टर जी ने ही निभाएंगे और इस अध्यक्ष भाषण हमारे प्रिय प्रधान अध्यापिका जी बिंदु टीचर जी ने करेगी और सह अध्यापकों छात्रों 1949 सितंबर 14 को हमारे भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। 1950 जनवरी 26 को वही विचार को घोषित किया गया और आज हमारे देश में 50 से अधिक करोड़ लोग हिंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं और आम जनता की भाषा ही हिंदी। आम जनता अपने दफ्तर में, विद्यालयों में और शहरों में और गांवों में हिंदी की उपयोग कर रहे हैं। सो ही हिंदी हमारी भाषा बन गई, आम जनता की भाषा है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी और हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी स्मरण के साथ साथ सबसे निवेदन है कि हिंदी पढ़ना और पढ़ाना प्रचार करने के लिए सारे छात्र तैयार होना चाहिए और हमारे जीवन की एक भाग भी बन लेना भी चाहिए। धन्यवाद। ബഹുമാന്യനായ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ ചന്ദ്രബോസ് സാർ, സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ യുതി മാസ്റ്റർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിവസ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയും പാർലമെൻറ്റും രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രഭാഷ, ഒരു ഭരണഭാഷ രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരികയും പല തലങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിന് പകരമായിട്ട് ഹിന്ദി, അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഭാഷയായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ 14 എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഹിന്ദി ദിവസമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി രൂപീകൃതമാവുകയും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഹിന്ദി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഉപരിപഠനങ്ങളിലും ഹിന്ദി എന്ന വിഷയത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിച്ചു മുന്നേറാനുമുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഹിന്ദി ദിവസിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭണ്ഡാകാരത്തെ അറിയാനും ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്.
എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ദിവസിൻ്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ ചന്ദ്രബോസ് സാർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിദ്യാലയമായ പുത്തഞ്ചിറ GVHSലെ ദീർഘകാലത്തെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വിവിധ സംഘടനകളുടെ അധ്യാപക അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അധ്യാപന രംഗത്തുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ തരണനെല്ലൂർ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ ചന്ദ്രബോസ് സാർ അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. नमस्ते. पुत्तंचिर तेक्कुमुरुग हाईस्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रीमती बिंदु जी, हिंदी अध्यापक युधि जी, अन्य हिंदी अध्यापकों, बाकी सभी अध्यापिकाओं, स्कूल अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, प्यारे भाई बहनों, सबको मेरे नमस्कार. आज सितंबर 14 हिंदी दिवस या हिंदी दिन है. सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. सारे भारत में सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को ही हिंदी दिवस मनाने का कारण क्या है? हम जानते हैं अगस्त 15 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. कारण क्या है? 1947 अगस्त 15 को भारत ब्रिटिशों के शासन से स्वतंत्र हुआ. और अक्टूबर 2 गांधी जयंती है. कारण क्या है? गांधी जी का जन्म अक्टूबर 2 को हुआ. और इसी प्रकार सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का एक कारण भी है. भारत स्वतंत्र होने के बाद 1949 सितंबर 14 को संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी. राजभाषा माने क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज. इसका आशय है कि भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग होगा. और 1953 से 1953 से लेकर पूरे भारत में यह दिन सितंबर 14 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. और हिंदी के बारे में बताते समय एक विशेष बात यह है कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हिंदी के समर्थक थे. 1918 में गांधी जी ने एक साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था. और उनके मत में हिंदी जनमानस की भाषा है. और हिंदी भाषा बोलने के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरे दुनिया में अगली सबसे बड़ी भाषा है हिंदी. और हिंदी विश्व में करोड़ों लोगों की भाषा है. और इस दिवस पर हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है. और इस दिवस में सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. कॉलेजों और स्कूलों में प्रतियोगिताएं, भाषण, कविता आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हम जानते हैं भारत विविधताओं का देश है. इसका आशय कि वेशभूषा, आचार, भोजन, धर्म, त्योहार आदि में विभिन्नताएं हैं. उसी प्रकार भारत में एक ही भाषा नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती है. और इस देश में एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है. हिंदी अधिकतर लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया है. हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है. भारत में ही नहीं अन्य अनेक देशों में हिंदी बोलने वाले हैं.
പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, അമേരിക്ക, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, सूरीनाम, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में हिंदी बोलने वाले हैं और हिंदी का एक उत्तम साहित्य है और हिंदी साहित्य में भक्तिगाल, सुवर्णगाल माना जाता है। भक्त कवि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि के नाम आपने सुना होगा। कबीरदास के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। उनके दोहे आज भी बहुत प्रासंगिक है। कबीर के तत्व ने महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया था। उदाहरण के लिए सत्य ही ईश्वर है, यह कबीर का वचन है। महात्मा गांधी ने भी कहा था सत्य ही ईश्वर है। उसी प्रकार सूरदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे। विश्व साहित्य में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है और तुलसीदास प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे और श्री राम के भक्त थे तुलसीदास। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस वास्तव में हिंदी प्रदेश के लोगों का धर्म ग्रंथ है। हम जानते हैं मलयालम में एഴുത്തച്ഛൻ का अध्यात्म रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। उसी प्रकार हिंदी प्रदेश के लोगों का धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इसका मलयालम दोहे आज भी बहुत प्रासंगिक है। कबीर के तत्व ने महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया था। उदाहरण के लिए सत्य ही ईश्वर है, यह कबीर का वचन है। महात्मा गांधी ने भी कहा था सत्य ही ईश्वर है। उसी प्रकार सूरदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे। विश्व साहित्य में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है और तुलसीदास प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे और श्री राम के भक्त थे तुलसीदास। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस वास्तव में हिंदी प्रदेश के लोगों का धर्म ग्रंथ है। हम जानते हैं मलयालम में एഴുത്തച്ഛൻ का अध्यात्म रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। उसी प्रकार हिंदी प्रदेश के लोगों का धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इसका मलयालम अनुवाद भी है तुलसीदास रामायण 7 कांडों में है। इसी प्रकार मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री थी। यह भक्तिकाल के कवि है और आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विकास विपुल रूप से हुआ है। पद्य नहीं गद्य साहित्य का पूर्ण विकास हुआ है। उपन्यास, नॉवल, कथा, कहानियां, आलोचना, नाटक, यात्रा विवरण, निबंध, रेखाचित्र आदि आदि विभिन्न विधाओं का विकास हुआ है। और कहानियों के बारे में या उपन्यासों के बारे में एक विशेष बात बताने की है। और हिंदी साहित्य के कहानी सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद। 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी है और उत्तंजरा में यह हिंदी साहित्य और प्रेमचंद साहित्य का एक संबंध है। प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का अनुवाद मलयालम में हुआ है। यह मलयालम अनुवाद किए व्यक्ति पुत्तंजरा के E.K. दिवाकरन पोറ്റി जी है। उन्होंने सभी उपन्यासों का मलयालम में अनुवाद किया है। कर्मभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, कायाकल्पम, प्रतिज्ञा, सेवासदनम, गोदानम, रंगभूमि, मंगलसूत्र आदि आदि इसके उदाहरण है। और प्रेमचंद की कहानियां भी प्रेम पंचमी, स्त्री पक्ष कथകൾ, एक कुत्ते की आत्मकथा आदि कहानियों ने E.K. दिवाकरन पोറ്റി जी ने मलयालम में अनुवाद किया है। यह सारी पुस्तकें पुत्तंजरा वाचनालय में हम देख सकते हैं और इस अवसर पर पोस्टी मास्टर चाहता हूँ और पुत्तंजरा के निवासियों के लिए यह गर्व की बात है। इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि पुत्तंजरा को हिंदी साहित्य का परिचय करने वाले महान व्यक्ति का संबंध है और यह पुत्तंजरा निवासियों के लिए एक गर्व की बात है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध है और एक बात भी है E.K. दिवाकरन पोറ്റി जी के
गोदानम मलयालम अनुवाद के लिए केंद्र साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पोची मास्टर ने प्रेमचंद की रचनाओं ही नहीं अन्य साहित्यकारों की रचनाएं मलयालम में अनुवाद किया है और वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी है। इस प्रकार यह दिवस एक महत्वपूर्ण है और इके दीवानी पोची जी के काल में वास्तव में हिंदी साहित्य का परिचय यहाँ हुआ था और उनके स्वर्गवास के बाद भी हर वर्ष विविध विषयों पर चर्चा भी चलाई जा रही है और हम स्कूलों में हिंदी प्रचार के लिए अनेक प्रतियोगिताएं हम चला सकते हैं। इस अवसर पर मैं संक्षिप्त करना चाहता हूं और आपके स्कूल में इस वर्ष में अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं चलाए जा सकते हैं। युद्धि मास्टर और प्रधान अध्यापक के नेतृत्व में इस वर्ष में छात्रों को हिंदी साहित्य के बारे में अधिक परिचय प्राप्त करने का अवसर भी होगा और इस अवसर पर तेकुमुरी हाई स्कूल के यह सितंबर 14 हिंदी दिवस के उद्घाटन की घोषणा करने में मैं बहुत खुश हूँ और एक बार फिर हिंदी दिवस की सारी शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रेया सिंह है और आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए हूँ। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा बनी। 14 सितंबर को भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। हिंदी भारत के लगभग 250 मिलियन लोगों की भाषा है। हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है जो विश्वव्यापी संसार में मदद करते हैं। हिंदी दुनिया की 14 सबसे बड़ी भाषा है। उत्तर भारत की सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में हिंदी एक मुख्य भाषा है। हिंदी को संस्कृत का एक विकसित रूप कहा जाता है। धन्यवाद। हिंदी दिवस का महत्व। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसका बढ़ाने देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। यह युवाओं को अपने जड़ों के बारे में याद दिलाने को एक तरीका है। यह दिन हर साल हम हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए। अर्थात और दे एक अनुस्मारिक के रूप में कार्य करता है। हिंदी दिवस एक ऐसे दिन है जो हमें देशभाविक भावन के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में अंग्रेजी की ओर के झुकाव है जिसे समझा जा सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भारत की आधिकारिक भाषा से एक है। यह दिन हमें यह याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी दिवस पर निबंध। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर में हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है।
നമസ്കാരം. ഗേൾ ഗേൾ പാനി. ഗേൾ ഗേൾ പാനി മമ്മി മേരെ റാണി. ഗേൾ ഗേൾ പാനി മമ്മി മേരെ റാണി. पप्पा मेरे राजा फल गाए तासा. पप्पा मेरे राजा फल गाए तासा. सोने की चिड़िया चांद का दरवाजा. सोने की चिड़िया चांद का दरवाजा. उसमें कौन आएगा मेरा भैया राजा. उसमें कौन आएगा मेरा भैया राजा. थैंक यू. आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार. आज मैं आपको हिंदी दिवस पर भाषण देना रही है. हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है. 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान भाषा के रूप में मान्यता मिला था. हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा है. हिंदी भारत का सम्मान है. आज देश का हर नागरिक हिंदी सीखना चाहता है. हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए. सभी को हिंदी की शुभकामनाएं. धन्यवाद. मेरे लिए हिंदी दिवस कार्यक्रम में धन्यवाद करने का अवसर मिला है. इसमें मैं बहुत खुश हूँ. हर साल सितंबर 14 को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है. संपूर्ण भारत में इस दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. हिंदी बेहद सरल, सुंदर और सुगम भाषा है. और जब तक राष्ट्रभाषा नहीं है, आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं है, तब तक राष्ट्र नहीं है. और अब इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्घाटक श्री चंद्रबोस सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. और अध्यक्ष श्रीमती प्रधान अध्यापिका श्रीमती बिंदु टीचर को और स्वागत किए श्री युति मास्टर को और मेरे प्रिय सह अध्यापक और प्रिय छात्रों सबको मेरा धन्यवाद और हिंदी दिन की शुभकामनाएं. जय